Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are going forward with personality-based questions in ethics and taking the copy of Medha Anand ma'am. Okay, so personality-based questions would be the target. इसके पहले हमने देखे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे एड्रेस किया जाता है और बाकी जो शॉर्ट नोट्स वाले या सब पार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी किस तरीके से हम एड्रेस करते हैं. ओके, तो मूविंग ऑन टू द question now. The emphasis of Swami Dayanand Saraswati on education, social equality, and ethical values continue to influence the socio-cultural discourse in contemporary India. Discuss with suitable examples. तो जो कीवर्ड्स हैं थोड़ा सा उन पे ध्यान देना पड़ेगा. जैसे एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी, एथिकल वैल्यूज, है ना, ये सब हमें समझाना है इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल डिस्कोर्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम. तो ये जो प्रेजेंट वाला एलिमेंट है ना, दिस शुड बी देयर प्रेजेंट इन अवर क्वेश्चन. ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नाउ, सॉरी, moving on to the answer now. Dayanand Saraswati's emphasis on education are manifest in the form of chain of DAV schools in India and across the world. Okay, Dayanand Anglo-Vedic College or schools, there are many different types of. Okay, so this is the like perfect introduction for it. Short and sweet, to the point. Okay, so the first demand of question is Dayanand Saraswati, education, social equality and ethical values. Okay, अब क्या है, यही है ना, यही मेन क्वेश्चन है. अब इसी को सोशो कल्चरल कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. ओके, तो हम जो हेडिंग डालेंगे वो वही मेन वाली डाल देंगे और लिखेंगे जो पॉइंट्स होंगे ना, वो इसमें होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए. ओके, तो moving on to the first point, preserve traditional culture with modern values. Example, chanting of Hindu prayer songs in morning assembly. देखिए, ये जो मैं कह रही थी कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको एड्रेस करना है, वो चीज इसमें आ गई. Then, ensuring survival of Sanskrit. Example, moral stories in Sanskrit is inculcated. Both good values lead to survival of language. अभी तक भी क्लास 8th तक संस्कृत 6 to 8th I guess it's compulsory in CBSE, right? तो ये एग्जाम्पल डाल सकते थे. Then, in tune with Gandhiji's learning by doing, field visit in school still undertaken. Fair enough. Social justice, he was for education of women, lower caste, and thus brought educational revolution. Okay, right to education can be the example in India. Okay, then DPSP also has it. Then moral values like compassion, empathy, etc. were uh, kept kept above profit motive. Okay. Okay, CSR initiatives, we can write here in example. Then, gender justice was his most important talisman as he thought of it as a driver of social change. अब ये जो keywords होता है ना, this plays a part. Okay, ऐसे keywords we will try to inculcate in our answers as well, as he thought of it as drivers of social change. Okay, perfect enough. But अब इसमें क्या improvement कर सकते हैं? पहली बात तो examples को add करना in every part of the question. Okay, every part of the point. Examples add करें हमने. और क्या क्या कर सकते हैं हम? We will try to segregate कैसे? Education, social equality and ethical values. तो हम अपनी heading start करेंगे. Then we'll start writing education, 2 points, equality, okay, 2 points, then ethical values. Okay, और इसमें 2 पॉइंट्स, ये हमारे 6 पॉइंट हो गए. प्लस इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे. ओके, सी, ऐसे एडिशन आप अगर करके अपना स्ट्रक्चर बनाओगे, इट विल शो कि ओके यू हैव एड्रेस द डिमांड.
अब आपने जो हेडिंग लिखी है उसमें ट्राई टू ऐड द वर्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पार्ट ना मिस कर जाते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, बताते हैं हिस्टोरिकल टाइम के कि उन्होंने ये कॉलेज खोला था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसे ये वाली रिवॉल्यूशन लाई। ये सब पॉइंटर्स ठीक है, बट ये जो मेन चीज है ना जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट एनी कॉस्ट, है ना। अब ये जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको आपके स्टैटिक पार्ट में मिल जाएंगे। अगर स्टैटिक पार्ट से भी कभी हट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ट्राई टू जनरेट पॉइंट्स बाय थिंकिंग दिस वे कि चलो एजुकेशन में क्या किया होगा, है ना। अगर नहीं भी आता, स्पेसिफिक नहीं आता, तो जनरल के विमेन एजुकेशन को बढ़ाया, है ना, एजुकेशन एज अ सोशल इम्पोर्टेंस बताया एक बेटर सोसाइटी के लिए, ठीक है। इक्वालिटी बढ़ाई, दलित्स या लोअर कास्ट के लिए उन्होंने बोला, है ना, कल्चर के लिए बोला, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने इन जनरल आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नहीं आते होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उन क्वेश्चन से निपटने के लिए ना ऐसे ही पॉइंट जनरेट करने होते हैं, एंड यू विल नेवर गो इन नेगेटिव इन दैट। अगर 6 नंबर 5 नंबर नहीं भी मिल रहे तो यू गेट 2-3 मार्क्स देयर, और ये 2-3 मार्क भी बहुत फर्क लाता है, एंड इट शो योर कॉन्फिडेंस while राइटिंग द आंसर्स। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने। अगर कैसे भी क्वेश्चन आया, नहीं आता, आता है, जनरल लिख के आओ, बट छोड़ के नहीं आना है। ओके, दैट्स द फिलोसफी। Moving on to the conclusion now. Thus, Dayanand Saraswati's ideals still form a part of Indian ethos and will drive India towards Amrit Kal by bridging India Bharat divide. ओके, ऐसे भी लिख सकते थे, इंडिया टू भारत। प्रमोट मतलब हिज आइडियल्स आर प्रमोटिंग द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू भारत। ओके, ऐसे और ये कीवर्ड भी डाल सकते थे, विश्व गुरु। द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट philosophers like Dayanand Saraswati has expanded across the India and today inspire us as becoming Vishwa Guru for the world to understand our culture and heritage. ओके, ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ये सब जो कीवर्ड्स है ना, थोड़े से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ रहा होता है, कंक्लूजन इज द लास्ट थिंग ही रीड्स। ओके, अगर ये खराब हुआ तो ओवरऑल इम्प्रेशन बहुत खराब हो जाता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट होना चाहिए, अगर आपके आपके वर्ड्स पूरे होना चाहिए पहली बात तो। और वर्ड्स कैसे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड पूरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया वर्ड्स पूरे करने के लिए। ओके, दैट्स नॉट ऑल्सो अ ट्रू पार्ट। ओके, तो आपको थोड़ा सा डिमांड स्पेसिफिक रहना है। बहुत जनरल आंसर लिख दोगे ना तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपका नॉलेज कैसे बाहर दिखेगा। देखो, पेपर में ना 90 मार्क्स लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, हमें ये जो 120 140 ये वाला स्कोर है ना, सिर्फ ये कैसे आएगा, हर आंसर में अगर आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम भी ऐड कर सकते थे। डायग्राम कैसा, जो उनके मेन आइडियल्स हैं या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसको बना के एक छोटा सा चार्ट बना सकते थे, हब एंड स्पोक का। ओके, ऐसा ऐसा तो चीजें और भी क्लियर हो जाती। या फिर क्वेश्चन को अगर स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करोगे तो चीजें और भी क्लियर हो सकती है ना। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग ऑन द टॉपर्स कॉपी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि already she's a topper, then how does improvisation? But I'm sure whenever she will look at her own copy, whenever you, after becoming an officer, will go through your own copies, will be able to find कि हाँ मैं यहाँ पे improve कर सकता हूँ, है ना। और अगर हम ये नहीं देख पा रहे कि improvement कहाँ हो सकती है, then what's the point of all this, है ना। तो इसीलिए you have to take notes from these videos. They'll help you in the long run. It's up to you how you use them. Okay. तो ये हमने देखा एक आंसर। अब नाउ we'll move towards like statement based एक दो क्वेश्चन हम और लेंगे, फिर we'll move towards case study. Okay. So yeah, stay connected. If you like our videos, please share, subscribe, and please write comments below that how do you like them. Okay. A very good day ahead. Thank you.